or not? Tell me. It's okay, no? Because there's one more advantage that every lecture has been recorded and it can be had in my collection. And then I can, as I told you all, that I'll be putting these lectures on YouTube also. So if at all anybody is missing, he can avail the video from YouTube account. That I'll share after a little. Give me some time to make those things streamline. And one more thing, uh, आप लोग की जो अटेंडेंस होती है इस ऐप में, वो ये बताता है कि आप कितनी देर क्लास में बैठे हैं, ठीक है. नाउ यू जस्ट कैनॉट मेक अस फूल, लाइक लॉग इन कर दिया और छोड़ के भाग गए. तो एक बार लॉग इन होने से अटेंडेंस लग जाती है, बट इट शोज इन द अटेंडेंस, इट गिव्स विद परसेंटेज क्राइटेरिया आता है कि 10% बैठा था या पूरा 100% बैठा था या वट एवर, जितनी भी देर हम क्लास लेते होते हुए. तो मेक इट अ पॉइंट कि भाई या तो अटेंड करें तो पूरा अटेंड करें. At all, it depends upon you how you deal with these things. Anyways, so we were talking about something last class, in our last class on Monday. Publications के बारे में बात कर रहे थे हम. और publications में हमने काफी सारी चीजें जानने की कोशिश की. जैसे हम बात कर रहे थे प्रेसी राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे शायद. At that time, the time was over, so we had to leave. So anyways, अब हम मैंने कहा था कि in our next class we would be dealing with the points which are like included in an article, research article, a paper, a manuscript. अब कुछ चीजें टर्म्स, आप जैसे मैं नए नए टर्म्स बताता हूँ आपको, आप लोग को सुनने में आता है. If you find those terms as new ones, so please jot it down and make it a copy of it, right? Note it down. लाइक हमने लास्ट टाइम कॉपीराइट एक वर्ड सीखा था, और एक एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ड देखा था, कीवर्ड्स एक वर्ड एक टर्म सीखा था, राइट. एंड प्लेजरिज्म, PLAGIAR, plagiarism, ISM. Plagiarism is copying, copying the text from somebody else's publication. So that way, whenever you come across a new term which you haven't heard of, then please note it down, because ये वाइवा में ये सब चीजें पूछी जाती हैं. And as I told, we had to deal with something which is called statistics. And as biological students, when they deal with the statistics, it's called biostatistics. So जो biostatistics है उसके basis पे उस चीज को समझने के लिए मैंने I had given what you call एक brief background introduction था आप सबको कि what exactly this. Give me a sec. What exactly is this? ये statistics कैसे समझेंगे आप, unless and until you don't understand what the research paper is, then you will not be able to understand what statistics carries the importance. Okay, so well, so now we will be like looking into the aspects, or the which are the main points which are to be given proper consideration in writing a research article. A research article or a paper, what we call research paper. ये जो पेपर्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं, हमने डेटाबेसेस के बारे में भी बात किया था कि हाउ दे आर बीन the repositories have been created and how these repositories are retrieved. And कुछ लोगों ने पिछले असाइनमेंट के थ्रू मुझे सबमिट भी किया है कि how the paper has to be retrieved, and people have tried retrieving my paper, and a few people have submitted, and it was good, they had found the right article. तो ये सब चीजें थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की और यूज करने की, बिकॉज ये आपका एक वन ऑफ द प्रैक्टिकल्स है, हाउ टू रिट्रीव द डेटा. तो एक पहला आपने सीखा है कि हाउ टू रिट्रीव रिसर्च आर्टिकल फ्रॉम डिपॉजिटरी और रिपोजिटरी विच इज विद द हेल्प ऑफ पबमेड नाम के एक सर्च टूल से आपने पेपर को रिट्रीव करने की कोशिश की, एंड few people have submitted, so you must have understood what exactly and how exactly it has to be done. Well, now we will go into the aspects of a research paper. And research paper, when it is typed and written and it is ready to send to some publisher for publication, that script, जो script लिखा गया या टाइप किया गया,
That is called manuscript. Manuscript is a term which you need to understand. Manuscript मतलब किसी चीज का written matter, now which is there for some presentation, either on print media or on visual media or whatever. तो जब किसी भी आर्टिकल का हम एक रिटन फॉर्म में देखते हैं उसको, उसको हम कहते हैं manuscript. And these manuscripts, when they are submitted to a publisher, nowadays the submission has become online, so you need to submit your written matter in the format of either word file or some other file, whichever file they are, rich text file. So these are all, word type of files with different formats of word. And these files, sometimes they call for the PDF format. Okay, so these publications have editor for the PDF. When we submit the PDF, they can edit the PDF from there, but they do not do so. They usually send these PDF files. PDF files are, what? Hello, sorry, somebody said something. Huh? What happened? Okay. Achha, can you expand this? Can you expand that PDF? Then, so PDF is a, you know portable document file. है ना, बहुत जगह बहुत अलग अलग मिलते हैं। पोर्टेबल नहीं यदि कि वो फाइल को, एक डॉक्यूमेंट फाइल को हम पोर्ट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो पीडीएफ फाइल्स को हम सबमिट करते हैं, तो जो रिटन मैटर है हमारे काम का, हमारे आर्टिकल का, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। डन। अब जब भी व्हेन मैन्युस्क्रिप्ट इज सबमिटेड टू अ पब्लिशर, so वो उसे, if the publishing house or the journal in which you are trying to publish, if the journal is under the peer review category. Peer review category मतलब, peer means, PEER, peer. Peer review मतलब होता है experts, experts का review. Peer means experts. तो expert की review committee category में आते हैं, यानी कि वो unless and until at least two experts say that this article, the experiments which have been performed, and the manuscript which has been submitted for publication is worth publishing. So unless and until the pairs don't say that this is publishable or printable, or till that time, a publisher doesn't allow your manuscript to get published. So whenever it is submitted, it's been in the, somebody's calling. Give me a sec. Gone.
मैं आ गया, वापस आया। मेरी आवाज आ रही है? ओके। ये मेरे कान से आवाज चली गई। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। मैं बिना इसकी बात। सो हम बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। तो व्हेन द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर फिर से ये चला गया। So much of problems. I think it's still recording. Let's see, timing तो नहीं दिखा रहा मुझे. Anyways, so manuscripts once they are submitted to a publishing house from where it has to be published, वो publishing house जब वो peers के साथ यानी कि experts के साथ review के लिए वो documents को भेजता है तो it needs a PDF format. So PDF format में वो experts के बाद हमारे manuscript को भेज देते हैं. And the expert will read through it. He will go through it. He will just check out what are the things which are really making that article publishable or that work worth publishing, so that people will you know refer this work or this publication in future. तो इसके लिए क्या होता है कि the area, the field in which I am trying to publish an article, उस field के experts को ये भेजा जाता है. Even if the publishing house doesn't have any person from the same field, exact field in which you are trying to publish an article, फिर भी वो एक I'm very sorry, again there's a call. Hello. Hello. Am I back?
sorry for the interruptions. We cannot avoid because there is a confusion which has popped in because वो आज मेरी क्लास थी तो वो बोल रहे हैं कि मेरी क्लास नहीं है एंड वो चल रहा है उसके ऊपर. पहले अर्लियर आई यूज नॉट टू हैव एनी क्लास ऑन थर्सडेज. 5 थ्योरी क्लासेस होती थी मेरी हफ्ते में. बट लेकिन जब ऑनलाइन जब शुरू हुआ तब हर एक को 2 क्लास दिए थे. तो आई हैड द क्लास ऑन थर्सडे. एनीवेज विल सी टू इट दैट वो टाइम टेबल उसको मैं आप लोगों को भी फॉरवर्ड कर दूंगा. क्योंकि ये पिछला सेमेस्टर हमने वैसे ही चलाया था. फिफ्थ सेमेस्टर जब ऑनलाइन क्लासेस होती. हाँ ठीक है, हो सकता है पॉसिबल. लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये पिछले फिफ्थ सेमेस्टर में जब क्लासेस हुई ना, मैं मंडे और थर्सडे मैं गिन के रखता ना. मेरा मंडे थर्सडे फाइनल ईयर है, ट्यूसडे वेडनेसडे सेकंड ईयर है, एंड फ्राइडे सैटरडे मेरा फर्स्ट ईयर है. ये ऐसा फिक्स था पहले से. लेकिन वो जो तुम टाइम टेबल बता रहे हो ना, वो एक्चुअल टाइम टेबल है फिफ्थ सेमेस्टर का, जिसमें प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूडेड थे. तो वो अलग टाइमिंग होती थी उसकी उसमें. लेकिन ये इसके बाद एक और टाइम टेबल बना था जिसमें सिर्फ थियरी क्लासेस के टाइम टेबल था. तो उसमें आई वॉज देयर ऑन थर्सडे. एनीवेज लेट अस चेक. आज मेरी क्लास खत्म कर लेते समहाउ. मैडम को भी बता दिए, सर को भी बता दिए हैं. एंड देखते हैं, वो टाइम टेबल मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को भी पास ऑन कर देंगे. ओके तो आज हम समहाउ उनकी हो या मेरी हो, जो भी है, जिस दिन भी मेरा रहता है वो अपन चेक करते हैं बाद में. ओके चल वी बिगिन नाउ. ओके ओके चलिए. अच्छा ये एस एन कौन है? स्नेहल कौन है? ये स्नेहा साकरे या स्नेहल साकरे. आप ना सबमिट करते हैं क्या नाम है असाइनमेंट्स ना, तो आप ना फाइल अपलोड ही नहीं होती आपकी, ब्लैंक रहता है. लेकिन मुझे यहाँ दिखता ही नहीं है बाकी. हाँ हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पे फाइल दिखती नहीं है आपने जो सबमिट किया. दोनों असाइनमेंट में आपने सबमिट किया है, लेकिन दोनों में आपकी फाइल नजर नहीं आती है अपलोडेड. तो अगली बार जरा चेक करना, क्योंकि आपका फिर इवैल्यूएशन नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये सब चीज फिर से करना आप. ठीक है ओके 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 चलिए. तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैन्युस्क्रिप्ट. और मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि जब मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट होता है किसी पब्लिशिंग हाउस में, और वो जब वो पीयर रिव्यूइंग के लिए यानी कि एक्सपर्ट्स के रिव्यूज के लिए जब वो सर्कुलेट किया जाता है एक्सपर्ट की तरफ, देन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज गिवन अ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, उसको हम बोलते हैं DOI. DOI मतलब डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर. याद रखिए, सब नई चीजें आप लोगों के लिए. भले ही आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा ये, लेकिन ये सब चीजें आपको इफ इट ऑल यू आर कंटिन्यूइंग योर PG MPhil PhD प्रोग्राम्स में जाएंगे. ऑफ कोर्स यदि PG में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं तो दीज ऑल थिंग्स यू कम अक्रॉस, ये सब समझ में आती हैं. ऑफ कोर्स अब हाँ, हमारे यहाँ PG में तो कोई रिसर्च पब्लिकेशंस करते नहीं हैं. तो यदि यदि इन केस यदि करते होंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं पब्लिकेशन के रिलेटेड. अब स्लोली हमें वो स्टैटिस्टिकल्स पे आना है. तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये होता है एक टेम्पररी आईडी होती है जिसके थ्रू आपके मैन्युस्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन इंटरनेट. यही आइडेंटिफिकेशन के नंबर के थ्रू ये पीयर्स के पास भी भेजा जाता है फॉर रिव्यूइंग. ओके अब नाउ नाउ मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि पीयर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स जो हैं, व्हाट दे सी एग्जैक्टली इन योर मैन्युस्क्रिप्ट, नॉट द लैंग्वेज. ऑफ कोर्स लैंग्वेज एक पॉइंट है, लास्ट में लिखता ही यार. अब यदि आपकी लैंग्वेज खराब है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स ही वुड कमेंट ऑन इट. उसके कमेंट्स आते थे. द मोर नंबर ऑफ कमेंट्स यू योर मैन्युस्क्रिप्ट इज विथ द रिव्यूअर के कमेंट्स आते हैं. यदि ज्यादा कमेंट्स रहे रिव्यूअर के, तो आपके मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि व्हाई दैट रिव्यूअर इज गिविंग सो मच ऑफ कमेंट्स. कमेंट्स मतलब आपकी गलतियां दिखा सकता है, आपके फ्लॉज पॉइंट आउट करेगा. the more the number of comments from a reviewer, it tells that your manuscript is questionable, right? So you need to clarify those comments. वो comments आपको clarify करना होता है. Not like that क्या वो गलत है. You cannot say like that वो गलत है. If somebody is saying कि this is not should not be done like this,
उस दिन मैं आपको बात कर रहा था कि सपोज आप प्रोटीन एस्टिमेट कर रहे हैं, तो देयर आर फ्यू बायोकेमिकल मेथड्स, जिसमें बायोरेट मेथड है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द प्रोटीन इज प्रेजेंट और नॉट, और वी कैन क्वांटिफाई ऑल्सो कि कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट? तो ये एक बायोरेट मेथड है, बट बायोरेट मेथड हैज गॉट इट्स ओन फ्लॉज, है ना? तो यदि हम स्मॉल क्वांटिटीज ले रहे हैं तो क्या वो सेंसिटिव है या नहीं? बिकॉज हर रिएक्शन, हर एक्सपेरिमेंट, हर प्रोटोकॉल के लिए एक, जब वो किसी चीज को एस्टिमेट करता है तो उसकी एक सेंसिटिविटी होती है कि वो कितने कम क्वांटिटी के नीचे वालों को सेंस नहीं कर पाता, या फिर कितनी क्वांटिटी के ऊपर के वैल्यूज को वो सेंस कर पाता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ दैट जो आप मशीनरी यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। सपोज आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कितनी सेंसिटिविटी है? तो द बेस्ट स्पेक्ट्रोफोटो इफ यू यूज, नोबडी विल क्वेश्चन। यदि आपने लिखा है कि मैंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली मैंने एनालाइज किया है इसको, बट ही वुड आस्क व्हाट स्पेक्ट्रोस्कोप यू हैव यूज्ड, तब वो समझ में आता आपने कौन से स्पेक्ट्रोस्कोप को यूज किया है। तो आप उसको लिखना पड़ता है ब्रांड नेम की, ये मैंने यूज किया था। देन ही वुड कम टू नो, अच्छा दिस इज शिमात्सु नाम की कंपनी है जो स्पेक्ट्रोस्कोप्स बनाती है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाती है। तो वो शिमात्सु का नाम आपने लिखा, उसका मॉडल नंबर लिखा, तो ही वुड अंडरस्टैंड, हाँ ही इज यूजिंग ए गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट फॉर असेसिंग दिस थिंग्स और एस्टिमेटिंग प्रोटीन। लेकिन आपने मान लीजिए ऐसी कुछ तो भी लोकल नाम लिखा, ही मस्ट हैव नॉट हर्ड इट, तो वो बोलेगा कि ये तो लोकल मैड है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी, वो अगला क्वेश्चन पूछेगा उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उसका लीस्ट काउंट कितना है, सबसे कम कितना वो एस्टिमेट कर सकता है। तो आपकी तो वैल्यूज इतनी कम आ रही हैं, तो इससे तो ये तो बहुत कम दिख रही हैं, तो क्या उसकी सेंसिटिविटी है या नहीं है, या फिर एरर रीडिंग्स आ रही हैं? तो कहने का मतलब ये है, द concept या फिर the principle behind this, the aim behind asking such thing is that whether you are using a standard protocol for assessing or qualifying, quantitatively assessing any chemical or substance, किसी भी चीज को आप एसेस कर रहे हैं तो क्या वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे मेथड्स हम जो पढ़ते हैं वो एज ओल्ड रहते हैं, उनके कुछ फ्लॉज रहते हैं, तो उसमें मॉडिफिकेशंस होकर नए प्रोटोकॉल्स बन जाते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो इट ऑल डिपेंड्स, यानी कि कहने का मतलब ये है, फॉर पब्लिकेशन द प्राइम एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट टू गेट अ गुड कमेंट फ्रॉम ए रिव्यूअर इज दैट द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यू यूज, द टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी यू यूज, कि वो किस मेथड से आप यूज कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन यूज कर रहे हैं। यानी कि जो सेकंड पॉइंट है, हर मैन्युस्क्रिप्ट में सेकंड पॉइंट रहता है, पहला इंट्रोडक्शन रहता है, सेकंड पॉइंट रहता है मटेरियल्स एंड मेथड्स, जो आप लोग एक्सपेरिमेंट में भी लिखते हो, एम प्रिंसिपल लिखते हो, प्रिंसिपल में इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर बाद में मटेरियल्स एंड मेथड्स। मटेरियल्स एंड मेथड्स में आप कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, कौन से केमिकल्स यूज कर रहे हो, केमिकल्स में भी आपको पूछेगा कौन सा केमिकल था वो, क्या वो सिग्मा का था, क्या वो कोलिजन का था, या फिर वो बोलेंगे आप लोबा का था, तो लोबा के केमिकल्स उतने प्यूरिफाइड नहीं रहते। हाँ, मर्क के केमिकल्स उतने प्यूरिफाइड नहीं रहते, लेकिन मर्क अच्छे स्टैंडर्ड के भी केमिकल्स बनाता है। तो यू नीड टू टेल देम कि व्हाट एग्जाम, मतलब हमेशा हम प्रोटोकॉल जब लिखते हैं, मेथड जब लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि एथिल अल्कोहल यूज किया था मैंने कोलिजन का, या फिर एथिल अल्कोहल यूज किया था एसआरएल का, कैटलॉग नंबर देना पड़ता है। तो दिस इज द वे you prove that, you tell them that you are using standard things and standard protocol, that's why your results are standard. okay, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके मैन्युस्क्रिप्ट में यदि रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो समझिए कि मेथड्स और मेथोडोलॉजीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको पूरे भारतवर्ष में उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी में एक और एस्पेक्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स, बाकी इंट्रोडक्शन आप यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यू नो लिटरेचर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, उसमें से आप निकाल सकते हैं इंट्रोडक्शन में। डिस्कशन में आप अपने रिजल्ट्स को किसी और के रिजल्ट के साथ में कंपेयर करके डिस्कस कर सकते हैं एंड एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जर्वेशंस। बट द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू हैव, the type of observations you have collected, those observations should be procured after applying a standard protocol or standard machinery. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज में। और इसके अंदर एक एस्पेक्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस।
तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या बताता है कि आपने जो ऑब्जर्वेशंस ली हैं क्या वो पूरे पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल हैं, या फिर आपके ऑब्जर्वेशन क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। आपने कोई एक सपोज करिए कि डायबिटीज वाले को कोई एक ड्रग दे रहे हैं आप, वो ड्रग देने के बाद उसके शुगर लेवल कंटेंट कम हो रहा है ब्लड में, तो ये प्रूफ आप ब्लड सैंपलिंग करते हैं, मेथड लगाते हैं और कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने 50 सैंपल्स में आपने इसको चेक किया, तो आपको समझ में आ रहा है कि वो ड्रग जब यूज कर रहे थे तो वो शुगर लेवल्स कम हो रही थी, डन, एग्रीड। तो ये हम समझ गए कि वो प्रोटोकॉल सही था और 50 लोगों में वो रिजल्ट सेम दिखा रहा था। बट क्या ये रिजल्ट्स किसी और जगह हम सैम्पलिंग करेंगे तो क्या वहां एप्लीकेबल रहेगा ये रिजल्ट आपने जो कंक्लूड किया है? तो आपकी वैल्यूज को, आपके ऑब्जर्वेशंस को, टू मेक देम ऑथेंटिक यू नीड टू टेल, टू मेक देम सिग्निफिकेंट और टू मेक देम सभी एक्सेप्ट कर सकें इस वैल्यूज को, उसके लिए आपको स्टेटिस्टिकली उसे प्रूव करना होता है कि हाँ ये रिजल्ट जो हैं सिग्निफिकेंट हैं। और सिग्निफिकेंट वाले आपने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स में शायद पढ़े हों लोअर क्लासेस में, जैसे स्टूडेंट टी टेस्ट होता है। स्टूडेंट टी टेस्ट एक बेसिक वे है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो वैल्यू आई है हमारे पास वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एक क्रिटिकल वैल्यू होती है एट सम परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि एक कॉन्फिडेंस लेवल पे वो वैल्यू सही है। अब मैं आपको बताता हूँ 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी 100 में से 95 टाइम्स आप करेंगे एक्सपेरिमेंट तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 95% ऑफ कॉन्फिडेंस। अब कुछ कुछ जगह पे 98% वाला भी है। तो ये सब चीजों के लिए स्टूडेंट टी टेस्ट है, तो उसमें क्रिटिकल वैल्यू आती है, तो वहां लिखा रहता है प्रोबेबिलिटी 0.05% प्रोबेबिलिटी। यानी अब मैं शायद पहले बताया हूं नहीं बताया हूं, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये स्पॉट करता है कि आप जो वैल्यूज कलेक्ट किए हैं वो कितना गलत हो सकता है। टाइम हो गया? नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि आप कितनी बार या कितने परसेंटेज वे या कितने मात्रा में, इन विच क्वांटिटी यू कैन बी रॉन्ग विथ योर रिजल्ट्स। स्टैटिस्टिक्स का ये खास बात है, हम सही हैं बिकॉज यू हैव गॉट सम रिजल्ट्स, दैट इज ओके, बट हाउ मच कैन यू बी रॉन्ग, तो ये देखा जाता है। अब कुछ चीजें ध्यान रखिए। For every result related to biological sciences, for every result observation in biological sciences, you need to get that same result at least for the 6 times. रिपीटेबिलिटी बोलते हैं इसको। आपके रिजल्ट्स कितनी बार रिपीट होते हैं, यानी कि बार बार सेम प्रोटोकॉल सेम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने के बाद आपको सेम टाइप का रिजल्ट मिलता है, देन आपका रिजल्ट ऑथेंटिक है। ओके तो यानी कि जब भी हम बायोलॉजिकल साइंसेस में, क्यों हम यूजुअली एनिमल्स को इन्वॉल्व करते हैं, तब एनिमल्स इन्वॉल्व करते हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम जब भी इन्वॉल्व रहा किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो यू नीड टू प्रूव दैट इट्स देयर विद द सिमिलर रिजल्ट इन 6 डिफरेंट एनिमल्स, सेम टाइप। जो भी आप मान लो चूहा देख रहे हो तो 6 चूहों में सेम आना चाहिए, रैबिट देख रहे हो तो 6 रैबिट्स में सेम आना चाहिए, ह्यूमन देख रहे हो तो 6 ह्यूमन सैंपल्स में सेम आना चाहिए। तो अभी आपने तो 50 सैंपल कर दिए ह्यूमन के, एक अभी जब कंसिडर कर रहे थे ना, तो in that you had used 50 samples and then your answer should be same। और नहीं भी आए तो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, मान लीजिए एक बार 22.3 आया, एक बार 22.6 आया, एक बार 22.5 आया, सेम रिपीट आ ही नहीं रहा, रिपीट हो ही नहीं रहा सेम वैल्यू, तो देन यू नीड टू अप्लाई सम statistical so protocols या statistical procedures by which you would say कि हाँ थोड़ा फर्क जरूर है बट ये सिग्निफिकेंट है। तो वो सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए ढेर सारे शाई टेस्ट है, स्टूडेंट टी टेस्ट है। अब इसके अलावा दूसरी चीजें हैं कि अब बहुत सारे सैंपल्स हमने कर लिए तो हम एवरेज निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीन। ऑल वैल्यूज divided by the number of the values, sum of all the values and divided by the number of the values, you get a average one या फिर mean। अब दूसरी बात है कि उसी में उसी टर्म्स में और एक चीज है कि मीडियन। मीडियन मतलब आपकी रेंज है, आपकी वैल्यूज 2 से लेकर 6 के बीच में आ रही है, तो 2 और 6 ये ना, इन दोनों के बीच की वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं मीडियन वैल्यू। 2 और 6 के बीच की वैल्यू क्या होगा?
2 plus 6 that is 8 divided by 2 हाफ है ना, तो वो आ जाएगा 4। तो 4 आपकी मीडियन वैल्यू हो गई। अब एक और चीज जिसको हम बोलते हैं मोड, ये भी आप जानते हो यूजुअली, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। तो मोड क्या है? द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स द सेम वैल्यू इज रिपीटेड। सपोज यू हैव कलेक्टेड 50 samples in which 10 samples have been repeated with the same value like 4, है ना। तो जो वैल्यू रिपीट हो रही सबसे मैक्सिमम टाइम्स उसको हम मोड कहते हैं। सपोज 4 की वैल्यू 10 बार आ रही है और 4.2 की वैल्यू 11 बार आ रही है, तो 4.2 मोड होगा उसका। 4.2 मतलब कि 4.2 जो है, जितना भी इनका सैंपल था, जितने भी सैम्पलिंग इन्होंने की थी, जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स दे हैव कलेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड, इन दैट 4.2 is the value which has been repeatedly received, repeatedly observed in maximum number of samples। ठीक है, ये ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है। मोड क्रिएट्स ऑथेंटिसिटी। मीडियन शोज दैट कि हाउ वेरिएबल योर वैल्यूज आर, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सिंपल स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया सिग्निफिकेंस टेस्ट करा जाता है। अब सिग्निफिकेंस ये, अब एक और चीज आपने देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी आपने सुना होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब आपकी जो एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू से आपकी जो वैल्यूज आ रही है, सपोज अभी 2, बहुत सारे वैल्यूज आई 50 के, 2 और 6 के बीच में, आपने एवरेज निकाल दिया इज 4। तो 4 एक एवरेज वैल्यू है जो आनी चाहिए हर सैंपल में, हर रिजल्ट में आनी चाहिए, लेकिन कम ज्यादा हो रहा है। तो लाइक 2.8 आया था, तो 2.8 कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है आपके एवरेज वैल्यू से, उसको हम बोलते हैं डिविएशन। तो प्लस साइड भी है, माइनस साइड में भी है। 2.8 है मतलब वो 1.2 टाइम्स का डिविएशन है टुवर्ड्स द नेगेटिव, एंड वो वही मान लीजिए 4.8 है, तो वो 0.8 टाइम्स डिविएटेड है फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, दैट इज मीन वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं, जब इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं तो हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन। अब एक और चीज, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब आपकी ओरिजिनल जो एवरेज वैल्यू होनी चाहिए उससे वो कितना डिविएट करा, हाउ मच इट इज डिविएटिंग फ्रॉम द वैल्यू विच शुड बी गॉट। तो ये डिविएशन, ये भी देखिए गलत चीज ही हम डिटेक्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में। और एक और चीज है स्टैंडर्ड एरर। आप मान लीजिए 2.8 एक वैल्यू आ रही है आपकी, एक बार 4.8 वैल्यू आ रही है, ये सब डिविएट तो हो रहे हैं, लेकिन ये सभी डिविएशंस को हम साथ में कलेक्टिवली देखें और देखें कि कितना गलत हो रहे हैं हम हर बार। लाइक 2.8 वैल्यू आई थी, यानी आप 1.2 टाइम्स डिविएट हो गए हो, 1.2 वैल्यू से डिविएट हो गए हो 4 से, 4 आपके एवरेज वैल्यू थी, तो क्या हो गया 1.2 आउट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, वो सम परसेंटेज आएगा, ठीक है, 0.3% आता है। तो 0.33% का वो डिफ्लेक्शन है फ्रॉम द मेन ट्रेंड, जो ट्रेंड, उसको ट्रेंड भी बोलते हैं। 4 जो आपका ट्रेंड है उतना ही आना चाहिए, लेकिन 2.8 है मतलब 1.2 वैल्यू से डिफर कर रहा है, यानी कि 0.33% से डिफर कर रहा है, राइट। या 0.33 नहीं बोलना चाहिए, वो 0.33 आएगा, हाँ 0.33% से डिफर कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये डिफरेंशिएशन, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये सभी का कैलकुलेट करते हैं और उसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में डालने के बाद हम उसका एरर निकालते हैं कि कितना हम गलत हो रहे हैं, हम कितना डिविएट हो रहे हैं। तो वो यूजुअली स्टैंडर्ड एरर के तहत आता है, जिसमें डिविएशन काउंट किया जाता है, जिसमें मीन काउंट किया जाता है। एंड इस सब होने के बावजूद भी सपोज आपके सैंपल्स 50 नहीं 5000 सैंपल्स हैं, तो तब ये डिविएशन, ये रेंज, ये मीन, ये मोड और ये मीडियन, ये सब बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। तो जब फ्लक्चुएशंस जो है, व्हेन द सैंपल इज टू लार्ज, यानी कि 20 सैंपल से ज्यादा हैं, तो तब यही स्टूडेंट टी टेस्ट और यही शाई टेस्ट या फिर यही एफ वैल्यू और यही जेड वैल्यू, ये सब इम्प्लाई नहीं होती हैं। 20 के नीचे सैंपल्स रहे तो उसके लिए अलग ऑपरेशंस हैं, 20 के ऊपर सैंपल्स रहे उसके लिए अलग ऑपरेशंस हैं। अब ये इसके अलावा भी और भी ढेर सारे ऑपरेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो आपको कुछ चीजें समझनी है, समझना है वो आपको। एक तो मीन, मोड, मीडियन वाला कुछ ऑपरेशंस है, जिससे आप एक सेंट्रल डॉगमा जो बोलते हैं या सेंट्रल ट्रेंड जो है वो बता पाते हैं आप, क्या इतने सारे वैल्यूज हमने इकट्ठे किए, उसमें से एवरेज 4 है, मतलब 4 के आसपास ही हमेशा इसका रिजल्ट आता है। वो आप सेंट्रल आइडिया दे रहे हैं आप आपके काम का। मीडियन आपका मिडिल वैल्यू बताता है, मोड आपके रिपीटेड वैल्यूज बताता है कि जितने ज्यादा
बार सेम वैल्यू रिपीट हो रही है मतलब वो उतना ज़्यादा ऑथेंटिक होता जाएगा। और फिर बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर देखते हैं। उसके बाद फिर आप इन दोनों को यूज़ करते हुए आपकी वैल्यू सही में सिग्निफिकेंट है या नहीं है। आपने एक 50 सैंपल का किया था, क्या यही 50 सैंपल हम किसी और दिन किसी और जगह से करेंगे तो सेम आता है क्या? इन केस नहीं आता तो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको डिफर कर रहे हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू नीड टू इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर एक्सप्लेनेशन। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो मेथड्स एंड मेथडोलॉजी के अंदर में आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंडियन रिसर्च पेपर्स में वो नहीं दिखता है, मोस्ट ऑफ द पेपर्स। तो ये नहीं समझिए कि कोई भी डेटा आप ऑब्जर्व करें, कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यू नीड टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। किसी भी चीज को एस्टिमेट कर रहे, फिगर्स आ रही हैं आपकी, एक नहीं 10 नहीं 25 नहीं 50 आ रही हैं, और जैसे 5000 हो गई, 500 सैंपल हो गए, बहुत लंबे पैमाने बड़े पैमाने पे आप ये कर रहे हैं। इन दैट केस हाउ दीज वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट। ये जो आप 5000 सैम्पलिंग किए हैं इनमें जो वैल्यूज आ रही हैं, द ऑब्जर्वेशंस यू आर कंक्लूडिंग, क्या ये सही में कहीं भी हमने इसको सैम्पलिंग किया तो ये वैल्यू सेम तरीके से अप्लाई होंगी या नहीं होंगी? दीज थिंग्स यू नीड टू आंसर। तो सबसे खास बात याद रखिएगा, आपके रिसर्च पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है मेथड्स एंड मेथडोलॉजी, जिसमें आप कौन से टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, कौन सा किट्स यूज कर रहे हैं, ये सब मायने रखता है। अभी आप बायोरेड है, जैसे अभी कोविड के इसमें बायोरेड का एक किट आता है, ऐसे दूसरे किट्स भी अवेलेबल, बट बायोरेड नाम लिखेंगे तो इंटरनेशनल कंपनी है, उसके किट्स बहुत से लोग यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसको स्टैंडर्ड समझा जाता है, जिसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, मतलब बहुत डिफ्लेक्शंस बहुत कम देगा उसके रिएजेंट्स, तो उतनी ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी या ऑथेंटिसिटी उस किट को यूज करने में बढ़ जाती है। यू नीड टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज थी जो मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब रही बात, एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाला भी ये बोलता नहीं है, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ, statistics is the only tool by which you come to know how much you can be wrong. You have got data, but the data कितना गलत हो सकता है वो हम बताते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन वो भी एक गलत तरीका है देखने का, कितना डिविएट हो रहा। स्टैंडर्ड एरर वो भी कितना गलत एरर आ रहा वो देखने। तो हमारे बायोलॉजिकल सैंपल्स में मैंने बताया था आपको 6 रिपीटेड वैल्यूज मिलनी चाहिए, और मतलब कम से कम आपने 6 सैंपल्स में काम किया हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो एरर की बात कर रहा था, तो हर एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 3% ही एरर अलाउड है। 3% से ज्यादा एरर आ रहा है तो आपके वैल्यूज किसी काम के नहीं हैं, आपके वैल्यूज ऐसे ही इकट्ठे कर लिए गए हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक तो 6 बायोलॉजिकल सैंपल्स यदि यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 रिपीटेड वैल्यूज शुड बी देयर, या 6 सैम्पलिंग शुड बी डन एट लीस्ट, और 3% से ज्यादा एरर अलाउड नहीं है। केमिस्ट्री में जाएंगे आप तो केमिस्ट्री में और कम है ये परसेंटेज, शायद 1.5% है या फिर 1.25% ऐसा कुछ तो भी है। फॉर एवरी साइंसेस इट्स अ बिट डिफरेंट, बिकॉज बायोलॉजिकल साइंसेस में बिकॉज बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर हो सकती है, इसलिए 3% ऑफ एरर इज अलाउड। 3% से ऊपर गया तो यानी कि आपका एरर अलाउड नहीं है, आपकी वैल्यूज किसी काम की नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम सिग्निफिकेंस देखते हैं, जैसे मैंने बताया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर 0.05 प्रोबेबिलिटी, या 0.005 प्रोबेबिलिटी भी रहता है, 0.00005 प्रोबेबिलिटी भी रहता है, किसी जगह 0.01 प्रोबेबिलिटी रहती है। 0.05 प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? 100 में से 5 बार, ये मतलब हुआ 0.05 मतलब आउट ऑफ 100 5 टाइम्स। 5 times probably you may be wrong. Out of 100, 5 times you may be wrong. 0.01, that means 1 time out of 100 you may be wrong. किसे किसे में रहता है 0.005, that means 5 times out of 1000 times of the same experiment done you may be wrong 5 times. तो ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग, उसके बेसिस पे हमारी वैल्यूज की ऑथेंटिसिटी बढ़ती रहती है।
यदि मैंने किसी वैल्यूज को निकाला, उसका सिग्निफिकेंट टेस्ट किया, स्टूडेंट टी टेस्ट किया, शाई टेस्ट किया, तो इससे जब मैं सिग्निफिकेंस देखता हूँ कि कितना सिग्निफिकेंट है, यदि वो वैल्यू मैंने प्रोबेबिलिटी 0.05 पे चेक की तो एक वैल्यू आती है, उसका एक चार्ट बना रहता है कि इतने प्रोबेबिलिटी पे आपके इतनी वैल्यूज आई हैं टी टेस्ट की, तो वो वैल्यूज को पुट करके देखिए, वो क्रिटिकल वैल्यू होती है उस चार्ट में, उस वैल्यू से कम है तो सिग्निफिकेंट है, ज्यादा है तो इनसिग्निफिकेंट है ना। तो 0.05 जो मैं प्रोबेबिलिटी बताता हूं उसको एक और तरीके से बोला जाता है 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब मैं 95% श्योर हूं कि मेरे वैल्यू सही है। ये दो तरीका है बताने का। तब इन चीजों को जब प्रोबेबिलिटी और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यूज करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने सैम्पलिंग की थी आपने, 10 सैंपल्स लेके किया था या 25 सैंपल किया था, या फिर 10 10 10 10 के 5 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे आपने, तो पांचों ग्रुप अब ग्रुप बन गए। अब देखिए एक नई चीज आ गई यहाँ पे, 10 10 सैंपल के आपने 5 अलग अलग ग्रुप बनाए थे, तो वो ग्रुप में कैसा था, एक 18 से 25 साल की उम्र की सैंपलिंग की थी, एक 25 से 32 साल का किया था, और एक 32 से लेकर 40 साल तक किया था। 3 ग्रुप्स हो गए। ऐसा 5 ग्रुप कर दिए मान लीजिए, अलग अलग एज ग्रुप में सैंपलिंग करो, ह्यूमन सैंपल ही है लेकिन एज ग्रुप्स डिफर हो गए। तो अब ये देखना है कि हर 10 सैंपल जो आपने हर ग्रुप में लिया था वो इंडिविजुअली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब इसके अलावा 18 to 25 तक जो आप कर रहे थे उसमें आपका सैंपलिंग बराबर है, सिग्निफिकेंट वैल्यूज आ रही हैं। 25 से लेकर 32 के बीच में सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं आ रही, गड़बड़ कर रहा है कुछ, तो भी सिग्निफिकेंस नहीं आ रही प्रोबेबिलिटी लेवल पे चेक करने पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, डेटा जो अलग अलग कैटेगरीज में था उन सबको एक दूसरे से कंपेयर करके देखते हैं। 18 साल वालों का 24 साल वालों से हो रहा है क्या, फिर 24 साल वालों का 32 साल वालों से हो रहा है, 32 से 40 साल वालों का हो रहा है क्या उस ग्रुप में। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। इसको क्या बोले, वेरिएशन था। एक ग्रुप में अलग वैल्यूज आ रही थी, दूसरे ग्रुप में थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, तीसरे ग्रुप में तीसरी वैल्यूज आ रही थी, यानी 18 वालों में बहुत कम वैल्यूज आ रही थी, 40 वालों के ऊपर में ज्यादा वैल्यूज आ रही थी, हालांकि सैंपल ह्यूमन सैंपल्स ही हैं। तो यहाँ क्या, यहाँ वेरिएशन आ रहा है। तो ये वेरिएशन को भी काउंट किया जाता है कि कितना वेरिएशन है, और वेरिएशन को भी देखा जाता है क्या ये एक्सेप्टेबल वेरिएशन है या नहीं है। उसको ग्राफ के थ्रू प्लॉट किया जाता है एंड देखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नजदीक नजदीक है कि दूर दूर है। और वैसे ही बहुत ज्यादा डेटा अपने 5000 सैंपल्स का किया है तो उन सबको हमको करना पड़ता है, एसेस करना पड़ता है कि कितने, एक ट्रेंड जो है, हम ट्रेंड जो बात कर रहे थे ना, ट्रेंड से कितना वैरी कर रहे हैं। तो वहां पे रैंडमनेस, वेरिएशन, स्क्यूनेस, यानी कि लाइन स्ट्रेट बनेगी या फिर कर्व हो जाएंगी या फिर आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, by by depicting the by plotting those values on a graph। तो ये सब चीजें जो है हम कितना गलत हो सकते हैं उन चीजों को काउंट करते करते चलते हैं। जब हम कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज को, सेम टाइप के सैम्पलिंग, सेम ह्यूमन सैंपल्स बट डिफरेंट कैटेगरीज अंडर डिफरेंट कंडीशंस है ना, वो एज ग्रुप वाला है, तो ये एक दूसरे से कितना रिलेटेड है। 18 वाला 24 साल वाले से कितना रिलेटेड है, या फिर 18 वाला 32 सालों से कितना रिलेटेड है। तो ये जो वेरिएशंस है, इन वेरिएशंस को एनालाइज करते हैं। तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएशन कहलाता है या वेरायंस कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं एनोवा, ANOVA। एन एनालिसिस, ओ ऑफ, और VA मतलब वेरायंस या वेरिएशन। तो ये वेरिएशन को एनालाइज करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे हैं, डंकन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएशन एंड एडवर्स एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। ये सब क्या है कि आपके सिग्निफिकेंट ग्रुप में आपने सिग्निफिकेंट है या नहीं चेक कर लिया, लेकिन ये ग्रुप जो है सब सेम एनिमल सैंपल्स के थे, तो क्या आपस में कुछ रिलेशन है इनमें कि नहीं है। तो रिलेशन है मतलब कोरिलेशन, ये टर्म्स है। कितना कोरिलेशन है 1 के साथ 18 ग्रुप वालों का 32 वाले ग्रुप से कितना रिलेशन है, कोरिलेशन फैक्टर्स। ये कोरिलेशन फैक्टर्स भी काउंट किया जाता है। या फिर रिग्रेशन, यानी कि रिग्रेशन मतलब कि कितना डिफर कर जा रहा है वो काउंट करना। कोरिलेट मतलब कितना 90% कोरिलेट कर रहा है, या रिग्रेस कर रहा है मतलब क्या 3% रिग्रेस कर रहा है, मतलब अलग हो रहा है उससे। तो ये अलग अलग टर्म्स है जिससे हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कितना हमारी वैल्यूज ऑथेंटिक हैं, और ये वैल्यूज को हम बाकी सब लोगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मालूम है शुगर लेवल्स, शुगर लेवल्स आपको मालूम है कितना होना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए। 1 ग्राम शुगर लेवल 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 1 ग्रा
किसी को मालूम है? बॉडी में, हमारे ब्लड में कितना शुगर होना चाहिए? एक रेंज है? नहीं मालूम? अच्छा, ब्लड प्रेशर मालूम है आपको? लोअर लिमिट और हायर लिमिट कितनी होनी चाहिए? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? हाँ, तो ब्लड प्रेशर मालूम है आप लोगों को? लोअर, यस। ये 80 और 120 एस्टैब्लिश कैसे हुआ है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे लोगों की सैंपलिंग की, बहुत सारे लोगों की सैंपलिंग करने के बाद फिर ये सेट किया गया कि भाई 80 और 120 के रेंज में ही होना चाहिए। लोअर 80 होना चाहिए, हायर 120 होना चाहिए। लेकिन वैसे ही अब जैसे कि हम बोलते हैं शुगर लेवल्स 120 होना चाहिए या 240 होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को 400 भी आता है। फास्टिंग में वो 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए। राइट, 80 से नीचे का मतलब आपको शुगर लो हो रहा है, और ज्यादा के ज्यादा में 240 से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए खाना खाने के बाद। कुछ लोग का 400 चला जाता है। तो वो अब जैसे कि ये सब जो सेट किए जाते हैं ना, ये द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लाइक सब्जेक्टेड टू द एक्सपेरिमेंट्स। अभी इतने लोगों के शुगर सैंपलिंग की होंगी, इतने लोगों का टेस्ट किया होगा, उतने लोगों का डेटा जमा हुआ होगा, उसके बेस पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के बाद ये रेंजेस निकली है, फाइनल रेंजेस। बट अब मैं वही बताता हूँ, कोरिलेशन या एनालिसिस ऑफ वेरिएशन यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है कि क्या आपकी वैल्यूज आपकी कंट्री के लिए सही है, क्या दूसरे कंट्री के लिए सही हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी कि चेंज हो जाए, तो आपको वहां की भी सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। तो फॉर दैट सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हमारे इंडिया में हो चुका है और हमने उसको पब्लिश कर दिया है, तो सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट कोई और रिसर्चर श्रीलंका में भी कर सकता है, कोई और रिसर्चर नेपाल में भी कर सकता है, या किसी और कंट्री में भी कर सकता है। एंड मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो सब हमारे पास आई हैं एज पर द वेस्टर्न एनालिसिस, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के एनालिसिस है, यूरोप एंड अमेरिकन एनालिसिस, और उनके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के ऊपर से। बट उनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं, हमारे लिविंग कंडीशंस अलग हैं, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारा फूड हैबिट्स अलग है, हमारा न्यूट्रिशनल इनटेक डिफरेंट है as compared to them. So that's why there is a variation, there is a scope of doing the same work which they have done, but in our country, in our scenario, in our situation. और इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यूज को उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना उनकी है। बट यूजुअली हम जब उनके जर्नल में सब पब्लिश करने जाते हैं तो वहाँ के पेयर्स ये देखते हैं कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड तो एस्टैब्लिश किया, ये कौन सा स्टैंडर्ड दे रहा है। देन यू नीड टू राइट इन योर मैन्युस्क्रिप्ट लाइक दैट कि आपके स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं बट आवर स्टैंडर्ड्स आर डिफरिंग, हमारी वैल्यूज डिफर कर रही हैं। तो हमारी वैल्यूज को, हमारे रिसर्च पेपर्स को एक ऐसा व्यू और एक ऐसा एक ऐसा विजन चाहिए हमारे पेपर को कि हम ये बताएं कि ये हमारी स्टैंडर्ड्स हैं भाई, ये स्टैंडर्ड्स आपने जो दे रखा है, ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज दी हैं, वो आपकी कंडीशंस के लिए वो करती हैं, लेकिन हमारी कंडीशन डिफर करती हैं। तो फॉर दैट यू नीड टू राइट द मैन्युस्क्रिप्ट लाइक दैट। वो विजन चाहिए हर रिसर्चर को। जब हम बोलते हैं ना रिसर्च एप्टीट्यूड चाहिए, तो रिसर्च एप्टीट्यूड यही है, यू नीड टू थिंक इन दैट वे। आज से मैं चाहूंगा कि आप लोग इन चीजों को डेवलप करो। नॉट ओनली साइंसेस, ये हर जगह काम आता है, हर जगह काम आता है। सपोज करिए आप एक बिरयानी बना रहे हैं घर में, किचन में भी काम आता है। बिरयानी बना रहे हैं आप घर में, आप उसको मैरिनेट करने के लिए मान लीजिए दही यूज कर रहे हैं, कुछ लोग लेमन जूस यूज करते हैं मैरिनेट करने के लिए। तो लेमन जूस में मैरिनेट होने के बाद, दही में मैरिनेट होने के बाद फर्क अलग अलग है, दोनों में फर्क आता है। कुछ लोग टमाटो प्यूरी यूज करते हैं। तो लेकिन ये कहाँ पे, कैसे, कौन सा मैरिनेशन ज्यादा बेटर है, या फिर कौन सा मैरिनेशन आपके मीट को सॉफ्टन कर देता है। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये हमारी लेडीज को बाय एक्सपीरियंस आ जाता है, हमारी होम मेकर्स को, है ना, हमारी वाइफ्स हो गई, मदर्स हो गई, सबको अपने आप आ जाता है। बट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट टाइम करते हैं उनसे भी गड़बड़ियां होती है। लाइक तो ये चीजें हैं। अब ये जो चीजें हैं थ्रू एक्सपीरियंस आता है, मतलब थ्रू सो मेनी टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। हर दिन खाना बनाती हैं वो, हर दिन बिरयानी बनाती रहती हैं, हर हफ्ते में एक बार बनाती हैं। तो क्या होता है, ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक समय के बाद कंसिस्टेंसी आ जाती है। ये व्यू होना चाहिए हमारे रिसर्च में कि हम जो वैल्यूज ला रहे हैं क्या वो सही में कंसिस्टेंट हैं किसी और
सैंपल सेट्स को भी ये इम्प्लाई करती हैं, वहां पे भी ये लागू होते हैं। चलिए एक बज चुका है, तो मेन थिंग यही था आप लोगों के बायोस्टैटिस्टिक्स में आपको समझने का। अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो जो टॉपिक्स दिए उस टॉपिक्स के हिसाब से आपको जब नोट्स दिया जाएगा तो आप लोग पढ़ना उसके बारे में। लेकिन मेन चीजें ये था, जो कंसेप्ट जो था, कोर कंसेप्ट समझने की जरूरत थी। सिंपली मैं स्टैटिस्टिक्स बता दिया होता आपको तो आपको समझा ही नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब हमें बहुत जरूरी है इन स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस का। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल अभी नया टाइम टेबल भी एक बार टाइम टेबल चेक कर लेते हैं एंड टाइमिंग का भी देख लेते हैं। ओके, सो कीप टॉकिंग इन बिटवीन। अब बात नहीं करते तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे बड़बड़ कर रहा हूँ, आवाज जा ही नहीं रही आप लोगों को। ओके, चलिए फिर मंडे मिलते हैं या फिर नए टाइम टेबल के हिसाब से मिलते हैं। बाय, थैंक यू।